Good morning, students. I hope you are all fine. It is a crisis period of the COVID. After many months, years, of almost 2 years, we are meeting again for the Maths M3. So this year there is a new syllabus for M3. It is same as previous year's syllabus, except the IT branch. Because initially IT branch was having a different syllabus and Com was having a different syllabus. So there was a trouble for computer diploma students because after the results it was not sure whether they will get admission into IT or Com. And when they used to get admission in the month of September, then it was clear that whether Com branch is there or IT. So it was very difficult for them to start the studies. Now खुश खबर है आपके लिए कि सबके लिए सिलेबस 90% सेम है. So we'll start with the most common topic, that is known as Laplace transform. It is there for Com, IT, Civil, Electronics, Electrical, Mechanical, Automobile, all branches. Laplace is the name of the mathematician and he suggested this transform. We have to consider a f of t. Now what is f of t? F of t is nothing but function of t. And what is t? T is a time. In maths we need not bother whether t is a time or not. But as engineers I am giving you information that t is a time. Examples of f of t are sin t, cos 2t, t raised to 3, sin hyperbolic t, cos hyperbolic t, etc. Exponential e raised to t, e raised to minus 3t. So these are trigonometric, algebraic, these are the hyperbolic, and these are the exponential. Only these type of functions are there for you. And we want to find Laplace transform of this kind of functions. It is useful in engineering problems in some branches like electronics, electrical, communication, computers, mechanicals, etc. Now, how we define Laplace transform? Let me define Laplace transform. Here, I will start with definition of Laplace transform. So, I write here Laplace transform of f of t. F of t is a function of time. Its Laplace transform is written as L for Laplace transform, curly braces f of t. It is defined बच्चों in terms of integration. Integration t equal to 0 to infinity. As I told you, t is a time. It cannot be negative. We cannot go back. So time changes from 0 to infinity. E raised to minus st into f of t into dt. So Laplace transform of any function is defined as integration 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. All these functions are put here. Integration is to be solved to get the formula of Laplace transform. The moment some students see integration, they develop fear psychosis. और इंटीग्रेशन है. डोंट वरी, हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करने का है, किसी और ने हमारे लिए सॉल्व करके रखा है और हम उसके डायरेक्ट फॉर्मूले देखेंगे. क्या देखेंगे? लैप्लास के डायरेक्ट फॉर्मूले. आपको वो याद रखना है, आपको इंटीग्रेशन याद नहीं रखना है कैसे फाइंड करने का. सो डोंट वरी. तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले देता हूँ, लैप्लास के लिस्ट ऑफ फॉर्मूले. ओके, लाइन में एक बात देखिए, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ फॉर्मूले.
बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल. प्लीज एडजस्ट द कैमरा ऑन दिस साइड सो आई कैन राइट हियर. पहला फॉर्मूला बच्चों, लैप्लस ऑफ ई रेज टू ए टी 1/s माइनस ए. बच्चों लैप्लस जिस फंक्शन का ले रहे हैं वो t का फंक्शन है और आंसर में s है. आपको एक राज की बात बताता हूं, आप वो भूल भी सकते हैं. t माने क्या है बोलो? करेक्ट, टाइम. s माने क्या है मालूम है? फ्रीक्वेंसी. क्या है? फ्रीक्वेंसी. इन अदर वर्ड्स लैप्लस क्या करता है? टाइम के फंक्शन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है. बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है मैथमेटिक्स में. सो अगेन देखो, लैप्लस ऑफ ई रेज टू ए टी 1/s माइनस ए. लैप्लस ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी क्या है रे बच्चों? 1/s प्लस ए. ई रेज टू माइनस ए टी, यानी अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है. एग्जाम्पल में यहां पे छोटा से लेता हूं इस फॉर्मूले के लिए. लैप्लस ऑफ ई रेज टू 2t, जरा बोलो क्या होगा? 1/, करेक्ट, एस प्लस है तो क्या होगा रे? माइनस 2. बराबर है. लैप्लस ऑफ ई रेज टू माइनस 3t, बोलो 1/s माइनस 3 तो क्या होगा? प्लस 3. ये इसके एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया. समझ में आया सबको फॉर्मूला? ओके, ये हमारा बच्चों पहला फॉर्मूला है. उसके बाद मैं आपको सेकंड फॉर्मूला बताता हूं. लैप्लस ऑफ टी रेज टू एन, टी रेज टू एन, इट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1. क्या फॉर्मूला है? लैप्लस ऑफ टी रेज टू एन, ये n देखा ना, n फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू n प्लस 1. इसका और एक फॉर्मूला है, ये क्या लिखा मैंने? गैमा n प्लस 1. क्या है? गैमा n प्लस 1 अपॉन, ये क्या लिखा है? एस रेज टू n प्लस 1. बाकी सेम है. n फैक्टोरियल की जगह लिखा है gamma n plus 1. Now you may ask diploma student, so what is gamma? We don't know. I will come to it later on. You initially study only this formula. n factorial all of you know. 3 factorial माने क्या रे? 3 into 2 into 1. 4 factorial क्या होता है? 4 into 3 into 2 into 1. वही factorial है. Laplace of t raised to n. अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं. लैप्लस ऑफ टी रेज टू 2, क्या फॉर्मूले देखो जाए यहां पे. लैप्लस ऑफ टी रेज टू एन क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1. सो कम हियर. लैप्लस ऑफ टी रेज टू 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू 2 प्लस 1. What is 2 factorial? 2 into 1 upon s raised to 3. Understood? That is 2 upon s raised to 3. Agreed? What is Laplace of t raised to 3? 3 factorial upon s raised to 3 plus 1. What is 3 factorial? 3 into 2 into 1. Correct? Upon s raised to 4. That is 6 upon s raised to 4. Understood how to apply formula? You can note in your notebook how to apply this formula. ठीक है? Now let us go to the next formula. Memory है क्या होगा? Memory record करिए. हाँ ठीक है. Third, because memory is an issue. Laplace of sin at. You know sin theta, cos theta. वो भी important function है. साइन 80, 2t के जगह 80 लिखा है. इट इज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्या है भैया? साइन 80 का लैप्लास a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर.
और साइन का ही भाई है cos 80। लैप्लस ऑफ cos 80 क्या है? एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ कंफ्यूजन बच्चे बोलेंगे सर कैसे याद रखने का? देखो भैया cos है ना, हवा सुट्टे की नहीं, cos माने एस, ये तो cos में क्या आता है? एस आता है। लैप्लस ऑफ cos 80 इज एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन 80 मध्ये काय येणार? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेट अस प्रॅक्टिस फ्यू प्रॉब्लेम्स कमिंग हियर। लैप्लस ऑफ साइन 2t, भाई साहब साइन 80 के जगह 2t है, माने ए कौन है? 2, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कौन है भाई? 2, 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। एग्री? लैप्लस ऑफ cos 4t, cos लगायचं एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos ला एस, that is एस upon a square plus 16. Understood this? Observe carefully. Shall we proceed? I have memory. Thank you. Then the fourth में Laplace of काय नीट वाचा, साइन एच 80 कोण आहे? हायपरबोलिक साइन आहे. कोण आहे? हायपरबोलिक साइन. काहींना वाटतं प्रिंटिंग मिस्टेक आहे सर, एच कसा आला? इट इज हायपरबोलिक, यूलर्स फॉर्मूला. लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, सेम फॉर्मूला बच्चों, खाली प्लस के जगह माइनस साइन, सेम फॉर्मूला देखो, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हाइपरबोलिक करके साइन होता है. एंड लैप्लस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, कॉस लगाना है एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दोनों में क्या फरक है? साइन आणि साइन्स मध्ये प्लस के जगह माइनस, कॉस आणि कॉस मध्ये प्लस के जगह माइनस. ये हाइपरबोलिक साइन कॉस है. कोण बाळा ना? हाइपरबोलिक साइन कॉस. बहुत बार है ना एस एच है ना, कॉश म्हणतो आम्ही. एस एच को श बोलते हैं ना, एस एच, बी एच यू पी एस एच, उपेश श. वैसे इसको हम बोलेंगे कॉस 80. क्या बोलेंगे? कॉस 80. तो इसको क्या बोलेंगे? साइंस 80. अगर आपको पसंद नहीं तो आप बोलो साइन हाइपरबोलिक 80, कॉस हाइपरबोलिक 80. पर मैं क्या बोलूंगा? साइंस 80, कॉस 80, साइन 80, कॉस 80. फर्क समझे? तो यहां पे कुछ प्रैक्टिस हो जाए उसका. देखो, लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t या साइंस 3t क्या आहे ना सांगा तुम्हीच. ए कोण आहे? 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, that is 3 upon a square minus 9. What is Laplace of cos phi t? Cos hyperbolic phi t. Cos म्हणजे s अपॉन a square. अगर cos होता तो प्लस आता, cos आहे तर माइनस a square म्हणजे phi square. So s upon a square minus 25. ए स्क्वायर माइनस 25, ऐसा आंसर आएगा ये. समझ में आ रहा है? तो आप में से बहुत लोग चिल्लाते होंगे से साइंस कॉस क्या है, हमें पता नहीं है. तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बताऊं. इधर साइंस और कॉस क्या है, हाउ वी डिफाइन. यहाँ पे आइए बच्चों, साइंस थीटा का फॉर्मूला है. आज नहीं तो कल सीखना है, कॉम्प्लेक्स मध्ये शिकायचं आहे आपल्याला. साइंस थीटा इज ई रेज टू थीटा माइनस ई रेज टू माइनस थीटा अपॉन 2. एंड कॉस थीटा का असतं माहिती आहे, ई रेज टू थीटा प्लस ई रेज टू माइनस थीटा अपॉन 2. ये इनका डेफिनेशन है हाइपरबोलिक फंक्शन का. इसको यूलर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूलर्स फॉर्मूला. ये साइन और साइंस और कॉस के फॉर्मूले हैं. इसका लैप्लस लेने के बाद ये हाल होता है. ओके, दिस इज द बेसिक.
लैप्लास में खाली इतने फॉर्मूले आपके लिए और 4-5 प्रॉपर्टी है, बस लैप्लास में आप मास्टर हो जाएंगे। बाद में आपको इनवर्स सीखना है। ओके, थैंक यू।